Hello my dear student, welcome in biology class 12, chapter number 12, biotechnology and its application. Already we are learning about the biotechnology in the chapter number 11, biotechnology, their principle and process. So we know that what is biotechnology? Biotechnology is a process by which use of organism for making a new products that is useful for the human beings. It is बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी सिंपली क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट टेक्निक का यूज करके हम लोग एक न्यू मॉडिफाइड प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि यूजफुल होता है किसके लिए? ह्यूमन बीइंग के लिए. तो पहले चैप्टर में हमने यही पढ़ा बायोटेक्नोलॉजी एंड देयर प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में अबाउट दैट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हाउ इट इज मेड and principle of recombinant DNA technology and different modes and tool and techniques of the recombinant DNA technology by which we can make new product that is useful for the human being. इन सब टॉपिक को हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को कैसे बनाया जाता है, कितने टूल्स हैं उसके, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या यूज है, ये सब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा था. आज चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे हम लोग क्या बेसिक प्रिंसिपल क्या है जो कि बायोटेक्नोलॉजी का, कहाँ इसका यूज होता है, किस में. सो मेनली इन दिस चैप्टर वी विल लर्न और स्टडी अबाउट बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन along with the transgenic animal, and last different ethical issue that related to the this बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस. तो इस चैप्टर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे. किसके बारे में? एग्रीकल्चर के बारे में, कैसे न्यू एग्रीकल्चर होगा, क्या उसका नया प्रोडक्ट होगा. मेडिसिन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे. उसके बाद लास्ट में एनिमल के ऊपर कैसे इसका इस एप्लीकेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है. लास्ट में डिफरेंट इशू पढ़ेंगे जो कि रिलेटेड होगा किससे? बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से. तो फर्स्ट चैप्टर 11 चैप्टर नंबर 12 एक दूसरे से क्या है? कोरिलेटिव है. वहां हमने बेसिक प्रिंसिपल और प्रोसेस पढ़ा. यहाँ पे उसी प्रिंसिपल और प्रोसेस का के द्वारा हम लोग पढ़ेंगे क्या? एप्लीकेशंस, डिफरेंट एप्लीकेशन विच इज यूज्ड फॉर द ह्यूमन बीइंग्स दैट प्रोवाइड द न्यू प्रोडक्ट इन द डेली लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग. लेट अस कंसीडर देयर आर मेनी एप्लीकेशंस that is used for the making a new things, new product, that is following. Here you can see applications of the biotechnology. First is the therapy से related है because it is used for the healing purpose, healing of the any organism. Therapies से related. Next one is the diagnostic. Diagnostic means identification of any desired new product or recombinant product. Next, genetically modified crop agriculture. Next application is the genetically modified crop agriculture in which the genetical change, just like you will learn already you learned the previous class about the inheritance, in which the long and tall and dwarf plant about that Mendel saw. There the genetical behavior shown in the agriculture. Next, processed food. That is used for micro-free food. Processed food क्या है? micro-free food जिसमें कोई कंटामिनेशन ना हो, पॉल्यूटेंट ना हो और वो लॉन्ग टर्म तक यूजफुल हो. नेक्स्ट एप्लीकेशन बायोरेमेडिएशन. बायोरेमेडिएशन में क्या होता है? इन दिस माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द वेस्ट, रिमूवल ऑफ द पॉल्यूटेंट, कंटामिनेशन फ्रॉम द पर्टिकुलर प्रोडक्ट. दिस बायोरेमेडिएशन इज ए टेक्निक which is used for the removal of pollutant with the help of microorganism or microbes. Last one is the waste treatment. It is
WWTP waste water treatment, you know about the water related, and also different technique used for the soil improvement, along that the environmental stress. This is waste are also decomposed by the decomposer, and also they are clear and neat and clean the environment. Next is the energy production. Last क्या है इसमें, last application of this biotechnology, the production of energy by the new product. This is the following 7 types of application used in the biotechnology, that is therapeutics, that is used for the healing or curing of any organism, any product. Diagnostic means identification of product or organism. Genetically modified agriculture means they have the genetical chain, tall to tall and dwarf to dwarf. Next one is the processed food, means that is micro free food used for the human purpose. Next one is the bioremediation. I told about the bioremediation. Bioremediation is a technique that is used for the removal of pollutant, contamination or any others that is harmful for the human being with the help of microorganism or microbes. And last one is the waste treatment, in which the treatment takes place by the different chemicals, otherwise UV radiation, etc. that treated the waste from the environment, otherwise into the biotechnology that useful for the human beings. At last, energy production application is takes place in the biotechnology. These are the following 7, which is application which is used for the modification and production of new organism without contamination, and further these products are useful for the human being. After the basic applications of the biotechnology, just like therapy, diagnostic, etc. Next is the 3 main research area of the biotechnology is important. Three critical research area of the biotechnology. First is providing the best catalyst in the form of improved organism, usually a microbes or pure enzyme. First research area that providing the best catalyst. सबसे पहले क्या करेंगे, बेस्ट कैटालिस्ट प्रोवाइड किया जाएगा. कैटालिस्ट क्या होते हैं? दे आर द उत्प्रेरक, इन हिंदी इट इज कॉल्ड, मींस कैटालिस्ट इज दैट परफॉर्म द फंक्शन and induce the function by their activity in the form of improved organism, usually a microbe or pure enzyme. सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि बेस्ट कैटालिस्ट दिया जाता है किसके रूप में? इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म के रूप में, और वो क्या होते हैं? माइक्रोब्स होंगे या प्योर एंजाइम. दिस इज फर्स्ट रिसर्च एरिया ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन. नेक्स्ट, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर ए कैटालिस्ट एक्ट. उसके बाद क्या होता है? क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन, उसके लिए एक पार्टिकुलर कंडीशन बनाया जाएगा मैक्सिमम, जिसमें वह जो कैटलिस्ट है प्रोग्रेस करेगा और अपने आप को मॉडिफाइड करेगा. वंस क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर ए कैटलिस्ट एक्ट, उस कैटलिस्ट के एक्शन के लिए एक ऑप्टिमल कंडीशन बनाया जाएगा. जैसे कंडीशन क्या हुआ? कंडीशन है कि माइक्रोब free that microbe action on the removal of the contamination, temperature, their other condition which is responsible for the making a new modified product that is useful for the
human beings in the by the help of biotechnology. एक ऑप्टिमल कंडीशन होगा इंजीनियरिंग को, जैसे हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में पढ़ा था। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या हुआ था कि वो एक प्रोसेस है किसकी द्वारा, जिसमें बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को के द्वारा अगर कोई मोलेटेंट कोई पोल्यूशन हो रहा है एनवायरनमेंट में, पॉल्यूटेंट है, कंटामिनेशन है, उसको रिमूव किया जाता था बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में। सेम कंडीशन ही है। लास्ट वन इज द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्यूरिफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दिस इज downstream means purification of the protein bands, protein products, otherwise organic compounds. सिंपली इसको हम लोगों ने पिछले चैप्टर के लास्ट टॉपिक में पढ़ा था डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिसमें हमने बताया था कि प्यूरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर कोई प्रोडक्ट बन गया तो उसमें सबसे लास्ट में प्यूरिफाइड होकर के उस पर लिखा जाता है, उसकी उस क्वालिटी को आइडेंटिफाई करके उस पर एक सिग्नल दे दिया जाता है जो कि क्या होता है, प्यूरिफाइड प्रोडक्ट का ओके लिख दिया जाता है। So these are the three main critical area research for the biotechnology. First one is providing the best catalyst in the form of improved organism, that is usually a microorganism or microbes or pure enzyme. Next one is the creating optimal condition through the engineering for a catalyst test, and last one is the downstream processing technology to purify the protein or organic compound. So by this three research area we can conclude that the biotechnology application is important for the improvement of the agriculture, medicine and transgenic animal etc. Here is following biotechnological application in agriculture. Three major options that can be increase the food production are, first one is the agrochemical based agriculture. Here agrochemical means some natural product and chemicals are used for the improvement in the agriculture that result in the production of yield product by the agriculture that is useful for the human beings. Next is the organic agriculture, in which the organic materials are used in the form of fertilizers and chemicals that is also help in the improvement of the crop production as well as that product be used for the human being. At last, third one is the genetically engineered crop based agriculture. It is the most important genetically engineering by which there is no loss of the generation takes place in the genetically engineering. By that one generation is used for as a crop used for the next generation that improve the production of a particular crop product in the high majority. So this is the majorly. By the green revolution is identified as that help in the tripling of food supply, and that is not enough to the growing population up to the a time. Along that, green revolution are helpful in the tripling of food supply into the organism, but it is not enough to complete the need of the growing human population. So at last, scientists declared that this genetically engineered crop-based agriculture or genetically modified crop-based culture is useful for the high yield production of the crop product and that complete the basic needs of the human being. ये क्या है? बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में पहला एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं,
केमिकल का भी यूज करते हैं और इनऑर्गेनिक मटेरियल से बने हुए जो फर्टिलाइजर हैं उसका यूज किया जाता है कहाँ पे, खेत में, जैसे ह्यूमस आप लोगों ने सुना होगा, इसके लिए हाई यील्ड क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। दूसरा है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज किया जाता है, जैसे डिफरेंट फर्टिलाइजर केमिकल हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होते हैं और हेल्प करते हैं क्या, हाई यील्ड प्रोडक्शन में, किसके, क्रॉप के। तीसरा क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है कि एक ही वेराइटी के प्लांट से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करके नया क्रॉप बनाते रहते हैं, जिसमें थोड़े से ही हमारे कंपाउंड एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, प्रोडक्ट की यील्डिंग होती है। एंड लास्ट वन इज द ग्रेन रिप्लेसमेंट हेल्प इन द ट्रिपलिंग ऑफ फूड सप्लाई। ग्रेन रिप्लेसमेंट से क्या हुआ कि किसी भी जो क्रॉप प्रोडक्ट उसका ट्रिपलिंग हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है पूरी दुनिया में कि वह हेल्पफुल नहीं हो रहा है, इनफ सप्लाई नहीं कर पा रहा है किसका, फूड का। सो लास्ट में क्या हुआ, जितने साइंटिस्ट हैं दुनिया के, उन्होंने क्या किया कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड या जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर है, इसी को यूजफुल माना और इसी की हेल्प से ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या हुआ, क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ, क्रॉप प्रोडक्ट हुए, और जो कि अभी भी हो रहे हैं, जिससे कॉमन ह्यूमन बीइंग की जो बेसिक नीड्स है उसकी फुलफिलिंग की जा रही है। दैट्स ऑल अबाउट बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। Next topic is important for GMO, genetically modified organism. Here let us focus some plants, bacteria, fungi and animals whose gene have been altered by manipulation are called genetically modified organism. In short is called GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। कुछ प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल जिनके जीन को अल्टर्ड कर दिया जाता है, मींस मॉडिफाइड कर दिया जाता है मैनिपुलेशन टेक्निक से। मैनिपुलेशन मींस होता है मॉडिफिकेशन, ठीक, मैनिपुलेट किया जाता है, उसमें सुधार किया जा सकता है, मैनिपुलेट। दे आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। उन्हें हम क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। दिस इज लास्ट ईयर 2018 में 2018-17 में ये क्या आया था, आपके वन वर्ड क्वेश्चन में आए थे, व्हाट इज जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वो है जिनकी कुछ सम प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया, फंजाई, देयर जीन व्हेन अल्टर्ड by the technique of manipulation are called genetically modified organism। वन वर्ड में क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड वेरी वन वर्ड 2 नंबर में इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जीएमओ के साथ इसका क्या है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, व्हाट इज बेनिफिट्स फॉर द ऑफ द जीएमओ ऑफ 2 नंबर्स इन योर एग्जाम। कैसे जानेंगे, वंस मोर, सम प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स whose gene have been altered by the process of manipulation are called genetically modified organism. In short, it is called GMO. Here are the following features that and benefits of the genetically modified organism on the environmental stress of the organism. Let's one by one आइए देखते हैं क्या है। The GMO made crops more tolerant to abiotic stresses. GMO makes crops more tolerant to abiotic stresses. GMO क्या करता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के जो होते हैं वो क्रॉप को बहुत ही टॉलरेंट कर देते हैं। टॉलरेंट मीन्स क्या होता है, सहनशील, इनके अंदर बहुत ही ज्यादा सहने की क्षमता। टू द एबायोटिक स्ट्रेस, एबायोटिक स्ट्रेस मीन्स टेम्परेचर, एयर, humidity, these are the abiotic stress that is impact on the plant
and also as well as the different organism for their different action by this temperature, increase of temperature, high humidity, loss of water etc. जीएमओ से क्या होता है, मेन क्या होते हैं, बहुत ही टॉलरेंट हो जाते हैं किसके, एबायोटिक स्ट्रेस से। एबायोटिक स्ट्रेस क्या है, एबायोटिक स्ट्रेस क्या है, टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिड कंडीशन, लॉस ऑफ वाटर एक्सेट्रा, दीज आर द एबायोटिक स्ट्रेसेस एंड आल्सो struggle for existence is the one another abiotic stresses. Next is this GMO reduce reliance on the chemical pesticide. Reliance means dependence, means निर्भरता. This GMO reduce the reliance on the chemical pesticide. इससे क्या हुआ कि हम लोग पेस्टिसाइड के ऊपर डिपेंड थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिपेंड हैं केमिकल पेस्टिसाइड पे। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन नहीं होता, बिकॉज ऑल द माइक्रो एक्शन इज कैन बी डिस्ट्रॉय बाय दिस GMO, genetically modified organism. So by that this genetically modified organism is mostly useful and yielding for the human purpose. That is suggested by the many scientists. Next, it help to the reduce post harvested loss. अब post harvested, after harvesting it reduce the, इससे क्या हुआ, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, हाइब्रिड जिसको हम लोग आजकल के बोलते हैं हाइब्रिड प्लांट, उससे क्या हुआ, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हुआ। जैसे अगर हम लोग सिंपल कोई प्लांट लगा दें विदाउट एनी जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, उससे चांसेस क्या हो सकता है, जब उस पर एबायोटिक स्ट्रेस होगा, मींस हाई टेम्परेचर होगा, ज़्यादा बरसात होगी और लास्ट या वाटर ही नहीं मिलेगा, तो क्या होगा कि जब मेच्योर होगा प्लांट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेकिन बाय दिस कंडीशन विद द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आर रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्टेड लॉस, बाद में उनमें कोई लॉस नहीं होता। नेक्स्ट, इट इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स यूजेज बाय द प्लांट। ये क्या किया, इंक्रीज किया एफिशिएंसी को, जो कि प्लांट के द्वारा ज्यादा से ज्यादा मिनरल यूज किए जाते थे, वाटर उनको ज्यादा चाहिए था, तो उन्होंने जीएमओ से क्या हुआ कि कम से कम मात्रा में उनको क्या चाहिए था, मिनरल की चाहिए। नहीं तो क्या होता था, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगातार खेतों में पानी भरते रहते थे। जैसे नाउअडेज पैडी प्लांट, धान का खेती चल रहा है, तो हम लोग प्राय पहले के ज़माने में क्या करते थे कि लगातार पानी उसमें लगातार फर्टिलाइजर डालते रहते थे। इस समय क्या है कि हाइब्रिड या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट आ गए हैं, हाइब्रिड सीड आ गए हैं किसके, राइस के, तो उससे क्या हुआ कि कम से कम मात्रा में लोगों को पेस्टिसाइड डालना पड़ता है। सो इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स यूज्ड बाय द प्लांट। प्लांट के अंदर जो मिनरल्स है उसको यूज को बढ़ाया है, कौन, जेनेटिकली मॉडिफाइड और टेक्निक। एंड इनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड, फॉर एग्जांपल विटामिन ए एनरिच्ड राइस। और क्या किया, दिस GMO हेल्प इन द एनहांसिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू, किसी भी फूड के अंदर में, फूड प्रोडक्ट के अंदर उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज किया, कौन, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल दिस इज विटामिन ए एनरिच्ड राइस। राइस में क्या हुआ, विटामिन ए एनरिच्ड मींस ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उसमें क्या पाया गया, विटामिन ए। दिस इज ऑल अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड देयर benefits which help the high yielding product of the plant product as well as another, and that is useful for the human beings in the biotechnology.